kind of variables we can created in interface? Only the public static final. Okay, which kind of modifier do we use for that field? Public static and final. Okay, they belongs to the interface. And then methods, what kinds of methods we use in a interface? All abstracts as well, default and static methods we used in a interface also. We can use default method in Java. Onwards, 8 Java 8 features. Okay, now see, झालं का तुमचं complete? कधी? yes, this is our test class, right? How we can create the, how we can create interface in Java, guys? Yes, anyone? How to create a class in Java, guys? By using the class keyword. Class, then class name, right? Class name, then class body. Okay, this is the way to create the class in Java programs. And how we can create the interface in Java, guys? By using the interface keyword. Interface keyword, then interface name. Okay, body, like a class. So class contains 5 elements. Also, interface contains only 2 members. There were declares variables and method. In a class, how many members we created or there? How many members used? Variables, methods, constructor, SIB, IIB. Okay, these all members were created, were used in a class. So, which members we used in a in interface? Only the 2 members we use over there. One is a variable, second one is a method. So in a class, 5 members we use. In an interface, only 2 members. So by default, every variable of a interface is a public static final. By default, every method of a interface is a public and abstract. So in a class, सारे के सारे members by default होते हैं क्या guys? No, we can make their modifiers for variables, methods, constructors. Okay, but in an interface, there is no need to given a modifier, to take a modifier for the variables and methods. Okay, there is a by default rule is a for variables public static final and method public and abstract. So partial abstraction, how can achieve partial abstraction? By using the abstract classes, and fully abstraction we can achieve it by the interface concept. So now onwards the Java 8 default methods also we use within the interface. Default method by using a default keyword, guys. By using a default keyword. Without the default keyword, can we make any concrete function in an interface? No, no way to declare any method as a concrete in an interface. Now see what is the difference. How to create an interface? Go to the project,
click on package. Mhm. Wait, wait a few minutes. Then new interface. Take an interface name. Mm, Here's one username of our interface. Okay, now see this interface is created in our Eclipse. This is a source file of a interface one. Upon where in a package p2. See, if we are trying to declare any concrete method, white there is the compilation error because in the interface we can't declare any concrete methods. By default, every method of a interface is a public and abstract. Abstract methods do not specify a body. Okay, कोई भी मेथड अगर हम इंटरफेस में डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो अपने आप क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है ऑटोमेटिक. तो ये तो हुई गेट मेथड किस टाइप की हुई गाइस, this method is abstract method. So can we specify the body for that, for this method is no, we can't specify the any body for a get function because get is the abstract by default, that is the abstract function. So over there we pass the semicolon there, that is the abstract. And can we use an instance block in our interface guys? No, we can't use any instance block in a interface. So interface, how can create the interface, sorry, instance block guys in a Java programs, in a Java class, only the curly braces open and close, that is the in which block, that is the instance block. Okay, it is possible in our Java in interface, it is not possible. Only which things, which members were used in a interface, only the variables and method, these two members of a class for the interface, sorry, for the interface, these two members for an interface. So can we use a static block in a interface? Static, yes, there is a compilation error, we can't use a instance and static block, both the blocks we can't use in a interface, we can't create, we can't declare in a interface body guys, only two members. So can we create a interface constructor? Interface net should be same as a class name, तो या तो interface name लगते हैं. No. There is the compilation error also. See, syntax error, insult to complete method declaration, right? तो यहाँ पे क्या आ रहा है, compilation error आ रहा है. हमारा रूट क्या था, हमारा कंस्ट्रक्टर का its name should be same as a class name. Class name नहीं तो but interface name is same as an interface name. तो constructor बना सकते हैं क्या guys? No, we can't create a constructor, any constructor in an interface as well. We can't create an instance block, we can't create a static block in an interface. Only two members for an interface, variables and methods. Okay. Okay. Can we use any concrete? No. But which kind of method we use over there, guys? Default functions we can use over there. By using which keyword? Default. Right. So, now, guys, why Java 8 provides the default function in interface? जैसे कि जावा में हमने देखा कि इंटरफेस में ना कोई भी कॉन्क्रीट फंक्शन नहीं होती है, तो यहाँ पे कॉन्क्रीट फंक्शन क्यों यूज हो रही है? Why we use the concrete function? Why we use the default show function in an interface? Because of we are achieving the 100% means fully abstraction to the interface method, right, to the Java 7. Okay, but Java which onwards guys, Java 8 onwards we use the default function in interface. तो यहाँ पे हम क्यों यूज कर रहे हैं? Why we use the default? जावा ने क्यों प्रोवाइड किया है? What is the reason behind that? तो हमें देखना है कि उसका रीजन क्या है, जावा ने डिफॉल्ट फंक्शन क्यों प्रोवाइड किया है, व्हाई. तो देखो कि जैसे क्या है ना, एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं,
हमने एप्लीकेशन बना दिया है, जैसे कि एप्लीकेशन बना दिया है सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है हमारा रिक्वायर्ड बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट आई है एंड यूजर से, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना हम हमारा एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। उसमें ना बहुत सारे इंटरफेसेस यूज किए, लाइक उसके बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस भी वो, और देयर वी यूज अ मोर इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस आल्सो देयर, हमने ना बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस भी यूज किए हैं, राइट। तो अभी क्या हुआ है ना कि हमारा है ना ऑलमोस्ट 90% हमारा एप्लीकेशन डेवलप हो गया है, रेडी हो गया है डिलीवर के लिए। ओके, तो इसमें हुआ है कि ना देर में स्लाइड चेंजेस। स्लाइड चेंजेस क्या हुआ है कि उसमें ना लिटिल बिट चेंज आया है कि वहां पे ना इंटरफेस में एक नया फंक्शन ऐड करना है, नया फंक्शन ऐड करना है। तो वहां पे अगर हम नया कोई फंक्शन ऐड कर देते हैं इन इंटरफेस, तो जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस होगी उस इंटरफेसेस की, जैसे मानो कि 20-30 इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उस एप्लीकेशन में, उस इंटरफेस से, तो वो क्या होगा, सारे इम्प्लीमेंटेशन क्लास पे वो रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा, सारे इम्प्लीमेंटेशन क्लास पे रिफ्लेक्ट होगा, अफेक्ट होगा। तो उसमें क्या अफेक्ट होगा कि जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, जैसे बनाते हम एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास, ना उसकी गाइस यहाँ पे ना अभी बना दिया है कि हमने एक नया फंक्शन बना लेते हैं शो करके, नाउ सी दिस इज आवर वन मोर फंक्शन इन इंटरफेस, यहाँ पे एक शो नाम का फंक्शन बना दिया है। नाउ अब इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास किसको बनाना है, टेस्ट किस पैकेज में, ओके P2 पैकेज में, सेम पैकेज, चलो ठीक है। अब इम्प्लीमेंट करना है तो हाउ कैन इम्प्लीमेंट इंटरफेस, बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट कीवर्ड। कोई भी जावा क्लास है ना इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है, वो मानो अब्स्ट्रैक्ट हो या नॉन अब्स्ट्रैक्ट हो। चलो ठीक है, नाउ सी यहाँ पे हम क्लास टेस्ट इसे इम्प्लीमेंट करना है इंटरफेस इंटरफेस 1। अब देखो गाइस, हमने देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज कर रहे थे ना हम, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या करते थे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स अगर हमने यूज किए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड वनली डिक्लेरेशन पार्ट है वहाँ पे, तो हम उसे इम्प्लीमेंट कहाँ करते थे गाइस, यस ऐश्वर्या, कहाँ इम्प्लीमेंट करते थे उसे हम, इनसाइड अ सब क्लास, इनटू द सब क्लास, इन अ सब क्लास में हम उसे इम्प्लीमेंट करते थे। तो अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास की हम सब क्लास बना रहे हैं, देखो यहाँ पे ना go through the whiteboard. Now so look, यहाँ बनी है हमारी abstract class void m void। अब देखो कि इसे ना हम abstract नहीं बना रहे हैं, आप now डिक्लेयरिंग दैट क्लास एज abstract, टेस्ट क्लास को है ना हम abstract नहीं बना रहे, तो अभी क्या होगा, यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगी, क्योंकि कोई भी फंक्शन एज abstract अगर डिक्लेयर कर रहे हैं कंप्लीट क्लास में, तो कंपाइलर हमें एरर देता है, किस टाइप का एरर देता है कि यार मेक दैट क्लास एज abstract, क्योंकि उस क्लास में ना abstract मेथड प्रेजेंट है। तो आप ये abstract क्लास में, टेस्ट क्लास में अभी abstract मेथड प्रेजेंट है, यस देयर इज abstract, here is a abstract method is available, now make that class as a abstract, तो हमें यहाँ पे इसे abstract डिक्लेयर करना होगा, राइट। abstract क्लास टेस्ट हमने बना दी इसे abstract करके। तो देखो यहाँ पे ना, अब इस क्लास को ना हम सब क्लास, इस क्लास की ना सब क्लास बना के ना M1 और M2 को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लास नया क्लास बना देते हैं डेमो एक्सटेंड्स टेस्ट, ओके नाउ सी। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि हम किसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सॉरी किसे एक्सटेंड कर रहे हैं, विच क्लास इज एक्सटेंडेड ओवर देयर, हमें ना डेमो टेस्ट क्लास को ना एक्सटेंड करवा रहे हैं, टेस्ट क्लास का नाम यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ के सारे के M1 और M2 फंक्शन कहाँ आ जाएंगे, डेमो क्लास में। तो यहाँ पे एक एरर आएगी, कंपाइल टाइम एरर, कंपाइलर हमें
मीन्स वार्निंग देगा कि यहाँ पे एरर देगा कि भाई जो भी मेथड्स आए हैं, कहाँ से, टेस्ट क्लास से, इनकम्प्लीट मेथड से। इनकम्प्लीट मेथड्स आप डेमो में अवेलेबल है, प्रेजेंट है वर्चुअली, तो आपको है ना क्या करना है, उन्हें इम्प्लीमेंट करो, या तो डेमो क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो, बिकॉज इन अ कॉन्क्रीट क्लास it doesn't have any abstract class because it doesn't contain any abstract. concrete class है ना, वो abstract class, abstract methods contain नहीं करती है. If were keeping a which method guys in a concrete abstract methods, तो क्या होता है वहाँ पे compile time error आती है. उस क्लास को भी आप abstract डिक्लेयर करो, नहीं तो उसे इम्प्लीमेंट करो. यहाँ पे देखो ना M1 M2 कहाँ आ गए, इन डेमो आ गए, तो उसका क्या करना जरूरी है हमें, इम्प्लीमेंटेशन. तो यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया void M1 void M2. ओके, इम्प्लीमेंट कर दिया, राइट. तो यहाँ पे ना आप डेमो क्लास में ना एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं. कोई जरूरत है नीड्स टू बी डिक्लेयर दैट क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट, नो नीड्स. ओके, यहाँ पे कोई नीड नहीं है, इसे एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो. यहाँ पे हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है, राइट. सब क्लास में हम उसे क्या करते हैं, इनकम्प्लीट मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं. लाइक अब इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस में है ना, यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड, इंटरफेस, इंटरफेस का नाम i1 दे देते हैं. नाउ सी, अब यहाँ पे हमने ना बना दिए void m1 बना दिया है, वो एब्स्ट्रैक्ट है. एक सेकंड मेथड ले लेते हैं m2, ठीक है. ओके, तो देखो आप ये बनी हमारे, ये बना हमारा इंटरफेस बना, i1 नाम का एक इंटरफेस बना है. उसमें कितने मेथड्स हैं, m1 एंड m2. सॉरी, वन थिंग इज, यहाँ पे अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ना हम गाइस एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हैं, तो हमें नेसेसरी होता है कि उस मेथड से पहले ना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करें. ओके, एब्स्ट्रैक्ट, राइट. यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना नेसेसरी होता है. तो यहाँ पे इंटरफेस में आते हैं, बाय डिफॉल्ट एवरी मेथड ऑफ इंटरफेस क्या होती है, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होती है. अब यहाँ पे बन गए इनकम्प्लीट मेथड्स. कहाँ आ गए गाइस, इंटरफेस में ना इनकम्प्लीट मेथड्स बना दिए हमने. अब बना दिए तो इसे कंप्लीट करना है, इम्प्लीमेंटेशन देना है हर एक मेथड का. तो यहाँ पे तो हमने थॉट्स, हमारे जो भी थॉट्स है, आवर थिंग्स जो भी थे, वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है. अब डिक्लेयर कर दिया है, वो थॉट्स कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इम्प्लीमेंटेशन करना होगा. जैसे कि हम लाइफ में गोल रखते हैं ना, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए जो भी लगता है वो सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, पहले स्टडी करनी होगी. तो जैसे यहाँ पे तो एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है हमने, M1 मेथड M2 बना दिया है, बट उसका जो एक्टिविटीज है उसमें कोई लॉजिक लिखा है क्या, अभी नहीं लिखा है. लॉजिक नहीं लिखा है तो उसका कोई यूज हो रहा है क्या, मीनिंग है क्या उसका कोई जावा में, नहीं है. अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करेंगे, हम देंगे ही नहीं, लॉजिक ही नहीं लिखेंगे, उसका कोई भी मोटो या तो उसको मीनिंग नहीं रहेगा, उसे कोई मीनिंग नहीं है. ओके देन, तो इंटरफेस जावा में यूज अगर कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है फॉर इंटरफेस. इंटरफेस में जो भी अनइम्प्लीमेंटेड फंक्शंस होते हैं, इनकम्प्लीट फंक्शंस, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको लॉजिक देने के लिए हम जावा में इम्प्लीमेंटेशन क्लास यूज करते हैं. तो हाउ कैन यूज दैट क्लास, चलो यहाँ पे बना देते हैं क्लास. क्लास जैसे कि हमने बना दी टी क्लास, which keyword, how can make a relation between an interface and class by using an implement keyword. implements किसे implement कर रहा है, i1 को कर दे रहा है, तो ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वट एवर फंक्शंस जो इनकम्प्लीट हो गए वो इनिट हो जाएंगे अपने आप टी क्लास में. अब टी क्लास में इनक्लूड हो रहे तो यहाँ पे एरर आएगी, compile time error, make that class as a abstract because there is a abstract methods is inherited, abstract method is virtually present. तो इस क्लास को है ना आप abstract डिक्लेयर करो, या तो इम्प्लीमेंट करो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, क्योंकि हम जावा की कोई भी कॉन्क्रीट क्लास है ना, उसमें हम abstract methods बना नहीं सकते. कॉन्क्रीट doesn't contain any abstract methods.
ओके, कॉन्क्रीट क्लास कंटेंट्स कॉन्क्रीट मेथड्स, वो क्या करती है, अपनी कॉन्क्रीट मेथड यूज करती है। यहाँ पे तो एब्स्ट्रैक्ट आ रही है, इसे एब्स्ट्रैक्ट करो या तो इम्प्लीमेंट करो। चलो नाउ हम यहाँ पे है ना इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब इम्प्लीमेंट करना है तो वहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है तो हमने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया विद बॉडी जो भी था M2। ओके, इम्प्लीमेंट कर दिया, कोई इशू है? कोई भी इशू नहीं। बट नाउ हमने हमारा डेवलपमेंट कर दिया, 80 to 90% हमने डेवलप कर दिया एप्लीकेशन रिगार्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द आवर रिक्वायरमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट आई थी हमारे पास उस हिसाब से जावा डेवलपर ने क्या कर दिया है, सारा का सारा एप्लीकेशन डेवलप कर दिया है, प्रोजेक्ट डेवलप रेडी हो गया है, कुछ दिनों के बाद है ना डिलीवर भी कर देगा। अब उसमें ना एक चेंज आ गया है, उसमें ना एक नया फंक्शन ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है? इंटरफेस में ऐड करना है। तो नाउ अगर इंटरफेस 1 हमने यूज किया है ना, उसकी कितनी 10-12 है ना, 10-20 इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस बन गई है हमारे एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे अगर मैं लगा देता हूँ एक नई फंक्शन यूज कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे ना मुझे क्या करना है, वाइड M3 बनानी है। अब यहाँ पे मुझे M3 बनानी है। नाउ लिसन गाइस केयरफुली। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया गाइस, यहाँ पे ना एक नया फंक्शन किस में ऐड कर दिया है, इंटरफेस 1 में। एक इंटरफेस में हमने ना M3 एक नई फंक्शन ऐड कर दी। वो किस टाइप के फंक्शन है गाइस? एब्स्ट्रैक्ट है, विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, इनकम्प्लीट मेथड है। तो इनकम्प्लीट मेथड है ना, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। क्यों एरर आएंगे गाइस? यहाँ पे कितने मेंबर से इनहेरिट हो रहे हैं इंटरफेस से? कितने मेंबर गाइस? 3 मेंबर्स हो रहे, M1 M2 एंड M3। अब M3 भी आ गए हैं ना यहाँ पे। तो M3 आ गया तो किस नेचर में आया है वो? टी में एब्स्ट्रैक्ट करके। वर्चुअली किस तरीके से प्रेजेंट है वो? सी क्लास में अभी वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर से प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ना कंपाइल टाइम एरर आ जाएंगे, राइट। सी हम प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे देखो कि हमारा हमने एक इंटरफेस बना लिया, गेट और शो मेथड बना दी। तो यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया ना हर एक मेथड को, गेट और शो को मैं इम्प्लीमेंट करा है। क्या पे दिख रहा है गाइस, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन इज विजिबल? ओके, तो यहाँ पे देखो कि एरर आ रही है, कंपाइल टाइम एरर आ रही है। द टाइप टेस्ट मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। कहाँ से इनहेरिटेड की है हमने मेथड? इंटरफेस 1 डॉट गेट। तो ये सारी मेथड्स आपको है ना यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी होगी, राइट। तो हम उसके हिसाब से हम यहाँ से है ना शॉर्टकट में लिख लेते हैं सारी के सारी मेथड और राइट कर दी। तो यहाँ पे देखो गाइस, 1 मिनट लेस कर देता हूँ, वंस में ना सारा कोड दिख सके आप लोगों को। दिख रहा है गाइस? Yes, sir. ओके, सी। तो यहाँ देखो क्या कर दिया है हमने, ये गेट मेथड शो मेथड है ना, इसे इम्प्लीमेंट कर दिया है, इसे बॉडी लगा दी है, राइट। ओके, यहाँ पे बॉडी लगा दी है, गेट के लिए इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है, शो के लिए भी इम्प्लीमेंट कर दिया है हमने। ओके, लॉजिक यहाँ तक हमारा सभी ठीक था, सभी सब है ना ठीक से चल रहा था सारी चीजें। ओके, बट हमारे ना वहाँ पे ना चेंज हो गया है, थोड़ा सा चेंज आया है कि इंटरफेस में ना एक नई मेथड लगा दो, नई मेथड यूज करनी। तो मानो हमारा जो इंटरफेस है ना, इस इंटरफेस को है ना इस पैकेज में ना P2 में बहुत सारी क्लासेस है तो उसे इम्प्लीमेंट कर दिए। अब देखो गेट फंक्शन है, गेट फंक्शन का टेस्ट क्लास में ना कोई एक लॉजिक रहेगा अलग का, अलग तरीके का। डेमो क्लास है, डेमो में सेम मेथड गेट फंक्शन वो है ना अलग लॉजिक से इम्प्लीमेंट होगी। अगर कोई दूसरा क्लास है उसमें भी उसको अलग लॉजिक से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि मानो गाइस साउंड है, साउंड साउंड एक हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब हर एक घर में साउंड है ना, सोनी का यूज करेंगे क्या गाइस? बोट का ही यूज करेगा कोई? हर एक बंदा गाइस फिलिप्स का ही यूज होगा क्या? नहीं, हर एक जगह क्या रहेगा, उसका डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, उसकी डिफरेंट क्वालिटीज रहेंगे, डिफरेंट उसके साउंड हो गए। जैसे कि ओके, समझ में आ रहा है ना गाइस आपको? इंटरफेस एक बार अगर इंटरफेस में हम मेथड बना देते हैं कोई,
तो उसको है ना कोई भी क्लास उस प्रोजेक्ट का उस पैकेज का है ना इम्प्लीमेंट कर सकता है विद डिफरेंट लॉजिक, क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्शन क्या थिंग है हमारी, हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, या तो इंटरफेस में हम बोलेंगे शो, हम है ना ओनली हमारे थॉट्स है ना उसे डिक्लेयर कर रहे हैं। अब जैसे किसी को आईएएस बनना है, कोई दिल्ली में जाएगा यूपीएससी की क्लास लगाने के लिए, कोई जैसे कि राजस्थान जाएगा, कोई जहाँ पे कोई पुणे से करेगा, कि उसका है ना इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, बट बनना क्या है, आईएएस बनना है, राइट। तो जैसे कि गेट फंक्शन है ना, ये हमारी इंटरफेस की गेट फंक्शन बनी है यहाँ पे। अब इसका है ना हर एक क्लास में ना इम्प्लीमेंटेशन अलग तरीके से होगा, अलग तरीके से होगा मीन्स उसका लॉजिक अलग रहेगा, अलग हो सकता है। शो मेथड है, शो मेथड का है ना हम कोई भी डिफरेंट लॉजिक से उसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनहेरिटेंस में सीखा ना मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि चाइल्ड डजंट सेटिस्फाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ पेरेंट, पेरेंट का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, करके वो खुद का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता है, तो उसे मेथड ओवरराइड करके हम डिफरेंट लॉजिक से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विद सेम मेथड सिग्नेचर। तो सेम रूल्स लागू होते हैं यहाँ पे, लगते हैं कि जैसे कि इंटरफेस की गेट मेथड है, टेस्ट क्लास में उसका लॉजिक कुछ भी रखो, डेमो क्लास है उसमें कोई भी रखो, दूसरी कोई क्लास है उसमें अलग से रखो, कोई भी क्लास है उसमें अलग तरीके से उसका लॉजिक आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे तो कर दिया सेम सही से, मतलब अच्छे से चल रहा था, बट नाउ यहाँ पे हमारी एक रिक्वायरमेंट हुई कि यहाँ है ना एक मोर वन फंक्शन इज डिक्लेयर, यहाँ पे ना एक और फंक्शन हमें डिक्लेयर कर देना है, रिजल्ट नाम का फंक्शन कर दिया। देखो यहाँ पे ना एरर आ गई गाइस, द टाइप टेस्ट must implement the inherited abstract method interface one dot result। जो रिजल्ट फंक्शन है ना किसकी, इंटरफेस वन की, उसे आप इंप्लीमेंट करो, नहीं तो उस क्लास को आप क्या करना है, मेक दैट क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट, उस क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो। मीन्स आप जितनी आप इस क्लास की ना मानो, हाउ मेनी इम्प्लीमेंटेशन क्लास फॉर देयर गाइस, हमने यहाँ पे लेट्स कंसीडर, यहाँ है ना डेमो क्लास भी इसे इम्प्लीमेंट कर रही है, देन विच क्लास, टेस्ट क्लास भी इम्प्लीमेंट कर रही है, देन इसे है ना कोई भी स्टूडेंट क्लास भी इसे है ना इम्प्लीमेंट कर रही है, एम्प्लॉय क्लास भी इसे एम्प्लॉय भी क्लास इम्प्लीमेंट कर रही है, या तो कोई भी मल्टीपल क्लासेस ले लो कि किसे इम्प्लीमेंट कर रही है, इंटरफेस वन को। अगर इंटरफेस में कोई नई फंक्शन ऐड कर दी हुई इस टाइप एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गई, तो किस पे अफेक्ट होगा सारा रिजल्ट, मतलब किस पे इफेक्ट होगा गाइस, उस टाइम परिणाम होगा ना इस पे, डेमो में भी कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, टेस्ट में भी कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, स्टूडेंट में आ जाएगा, एम्प्लॉय में आएगा, जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है किसकी, इंटरफेस की, उन सारी क्लास में क्या आ जाएगा, कंपाइल टाइम एरर। मेक दैट क्लास एज अ एब्स्ट्रैक्ट, या तो इम्प्लीमेंट इनकम्प्लीट मेथड्स, इस रिजल्ट को आप वहां पे इम्प्लीमेंट करो या तो उसे एब्स्ट्रैक्ट बनाओ। समझ में आ रहा है? तो इस तरह की एरर आएगी करके ना, अगर डेवलपमेंट हो गई है इन बिटवीन, अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, कोई फंक्शन हमें ऐड अगर करना है इंटरफेस में, तो उसमें हमारा जावा 8 से कौन सा रूल आया, विच इज अ रूल ओवर देयर, वहां पे हम डिफॉल्ट मेथड यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट यहाँ पे हमारी रिजल्ट फंक्शन रहेगी, क्योंकि कॉन्क्रीट मेथड तो हम नहीं बना सकते, अगर यहाँ से डिफॉल्ट हटा देते हैं तो आप कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट मेथड्स यहाँ पे यूज होगी क्या गाइस, इंटरफेस में कॉन्क्रीट मेथड्स यूज कर सकते हैं क्या हम, यस, नो, वी कांट यूज द कॉन्क्रीट मेथड इन इंटरफेस, इंटरफेस में यूज हो गया नहीं हो गया, अगर यूज कर रहे तो कंपाइल टाइम एरर आ गई, होगा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, तो विच कीवर्ड इज ओवर देयर, हम डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करके ही हम यहाँ पे मेथड बना सकते हैं। अब यहाँ पे डिफॉल्ट बना दी, यहाँ पे टेस्ट में कोई एरर आ रही है गाइस, यहाँ एरर आ रही है कोई, जो भी चेंजेस व्हाट एवर चेंज करना था हमने चेंज तो कर दी, नई मेथड एक इंटरफेस में लगानी थी, हमें नई मेथड एक यूज करनी थी, तो कर ली, यस।
यहाँ पे एरर आ रही है अभी कोई? No. इसके कारण ना वो जो एरर आती है डिफॉल्ट, अगर आप स्टैक यूज करते हैं तो उससे ना सारे क्लास में ना एरर आ जाएंगे करके जावा में, जावा 8 से ना नया कंसेप्ट आया है कि डिफॉल्ट मेथड हम इंटरफेस में यूज कर सकते हैं, ताकि उससे ना कोई भी क्लास में ना इफेक्ट ना हो, कोई भी क्लास में एरर ना आए कंसल्टेंट। तो यहाँ पे ना इम्प्लीमेंट हो जाएंगे विद लॉजिक, विद लॉजिक, जो भी लॉजिक से कोई भी रहेगा ना, लॉजिक से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। लॉजिक से इम्प्लीमेंट हो गए। अब देखो यहाँ से ना इम्प्लीमेंटेशन क्लास है ना, टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड विद विद दिस इम्प्लीमेंटेशन, विद दैट इम्प्लीमेंट, अगर इस रिजल्ट के इम्प्लीमेंटेशन से वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो यहाँ पे है ना उसे ओवरराइड करके वो सेम सिग्नेचर करके वो डिफरेंट लॉजिक से इम्प्लीमेंट कर सकता है। जैसे कि ठीक है चलो, जहाँ पे ना हम उसे इम्प्लीमेंट करना है तो सेम रखो, डिफॉल्ट है तो उसे पब्लिक वाइट रिजल्ट विद डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे टेस्ट में कोई एरर आ रही है गाइस? कोई एरर नहीं आ रही है। हमने इसे क्या कर दिया है, ओवरराइड, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देखो, ग्रीन एरो, ओवरराइड्स p2 डॉट इंटरफेस वन डॉट रिजल्ट, तो रिजल्ट मेथड हम यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं। यहाँ पे ओवरराइड होगा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर ओवरराइड करनी है तो करो, नहीं करनी है तो कीप एज इट इज, जैसे थी वो इंटरफेस की विद दैट लॉजिक। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसको ऐड करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। 1 मिनट है, 1 मिनट। हेलो गाइस, Hello. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों का? हम डिफॉल्ट फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, फिर यूज इन इंटरफेस, ताकि हम कोई चेंजेस, कोई नया फंक्शन अगर ऐड करना है इंटरफेस में, न्यू फंक्शन अगर ऐड करना है, अगर उससे हम एब्स्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा, हर एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास में ना कंपाइल टाइम एरर आएगी, क्योंकि वो इनकम्प्लीट मेथड कहाँ रहेगी, उस इंटरफेस में, और उस इंटरफेस को अगर इम्प्लीमेंट कर रही है कोई क्लास तो उस क्लास में भी वो वर्चुअली प्रेजेंट हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या करना होगा, हमें इम्प्लीमेंट करना होगा हर एक फंक्शन में इम्प्लीमेंट। जैसे कि देखो हम मोर देन 1-2 फंक्शन बना के बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे ना एक क्लास बना दी हमने, इसमें केस बना दी थी, एक नई इम्प्लीमेंटेशन क्लास में डेमो क्लास है। अब डेमो किसे एक्सटेंड कर रहे हैं, टेस्ट। यहाँ पे हम इसे कर रहे हैं implements interface, just going to be interface. इम्प्लीमेंट्स, ओके। अब देखो यहाँ पे किसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम इंटरफेस 1 को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। विच क्लास इज इम्प्लीमेंटेड, डेमो क्लास इम्प्लीमेंटिंग द इंटरफेस क्लास। अब इंटरफेस में कितने सारे फंक्शंस हैं, मानो यहाँ पे देयर इज अ 3 फंक्शंस, वन इज द डिफॉल्ट एंड टू इज अ एब्स्ट्रैक्ट। डेमो में ना यहाँ पे लगा दिया हमने सारी के सारे मेथड्स है ना ऐड कर दिया। ओके, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दें।
यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है गाइस? देयर इज एनी कंपाइलेशन एरर और देयर नो कंपाइलेशन एरर। यहाँ पे हमने कितने सारे ये टेस्ट क्लास भी किसे इंप्लीमेंट कर रहा है? इंटरफेस वन को कर रहा है। दूसरी इंप्लीमेंटेशन क्या है हमारी, विच इज द इंप्लीमेंटेशन सेकंड क्लास डेमो इज इंप्लीमेंटेशन क्लास। अगर इंटरफेस में अगर चेंजेस आते हैं कोई, यहाँ पे अगर कोई फंक्शन ऐड करना है, यहाँ पे एक नया कोई फंक्शन ऐड करना है, यहाँ पे रिजल्ट ऐड कर दिया है। देखो गाइस कहाँ कहाँ एरर आ रही है। अब एक बना दिया तो इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस वन। ओके रिजल्ट हम यहाँ पे राइट कर दिया। ओके यहाँ एरर आ गई, यस फेस वन में भी आ गई क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है इंटरफेस में। पहले दो ही फंक्शन थे, दोनों ही फंक्शन में हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया था, बट अब ये थर्ड एक ऐड कर दिया है, यहाँ पे एरर आ गई। अब डेमो में जाते हैं, डेमो में देखते हैं, यहाँ पे भी एरर आ गई है। ओके इस तरीके की एरर्स आ जाएंगे हर एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास में। अगर हम कोई नई फंक्शन कोई नया मेथड कहाँ ऐड कर देते हैं, इंटरफेस में, वो किस टाइप का होता हुआ तो एब्स्ट्रैक्ट अगर रहेगा तो हमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं करना है। फिर अगर कोई नया मेथड यूज करना है ना इंटरफेस में, तो किस टाइप का यूज करो आप, वो आपके जावा 8 से बताया गया है कि आप डिफॉल्ट करके यूज कर सकते हो। डिफॉल्ट ओके, अब डिफॉल्ट करके यूज कर लिया इसे। ओके डिफॉल्ट करके यूज करते हैं। यहाँ पे टेस्ट में कोई एरर आ रही है तो गाइस? कोई एरर नहीं आ रही है। डेमो में देखते हैं, डेमो में कोई एरर है क्या? अभी देयर इज नो एरर करके डिफॉल्ट मेथड का इन्वेंट हुआ है कहाँ से, ऑनवर्ड्स जावा 8 से। ओके डिफॉल्ट मेथड क्यों यूज करने, व्हाई वी यूज डिफॉल्ट फंक्शन इन इंटरफेस। समझ में आ गया गाइस आप लोगों को? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट गाइस? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है Yes, sir. ठीक। ये जावा 8 का फीचर है, डिफॉल्ट मेथड हम यूज करते हैं इंटरफेस में, वहां तक क्लियर है। अब होता है कि नेक्स्ट कंसेप्ट मार्कर इंटरफेस। अब काउंटर क्वेश्चन है इंटरव्यू में, हमेशा पूछते हैं कि व्हाट इज अ मार्कर इंटरफेस इन जावा। अब मार्कर इंटरफेस क्या होता है? यस पल्लवी? सर हम डिफॉल्ट का इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरफेस में विथ वन लॉजिक, और अदर लॉजिक हम उसी में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंटरफेस में ही, डिफॉल्ट फंक्शन को। है ना, वो तो मैं तो डुप्लीकेट हो जाएंगे ना विद द सेम नेम। नहीं होगा। ओके सेम थैंक यू। नेम सेम आर्गुमेंट से डुप्लीकेट हो जाएगा, जैसे ओवरराइट करके हम लॉजिक चेंज कर सकते हैं। देखो कि इंटरव्यू क्वेश्चन एक करता है कि व्हाट इज अ मार्कर इंटरफेस, व्हाट इज अ टैग इंटरफेस, व्हाट इज अ नेम, वन मोर नेम फॉर मार्कर इंटरफेस। नो आई एम नॉट टेकिंग राइट नाउ। सो होता है कि मार्कर इंटरफेस या तो टैग इंटरफेस। इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों को, व्हाट इज मीन बाय मार्कर इंटरफेस इन जावा। अब मार्कर इंटरफेस क्या होते हैं? मार्कर इंटरफेस मीन्स empty interface, no body means no, sorry, no body means no contents in a interface, without a contents. Without a contents means how? Let's see guys, अब एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं, इंटरफेस डी कंटेंट्स। यहाँ पे देखो कोई भी एलिमेंट्स नहीं है डी इंटरफेस का, तो किस टाइप का इंटरफेस बना गाइस? दिस इज द मार्कर इंटरफेस। दिस इज marker interface. Why we can say that is the marker interface guys? हम इसे marker interface क्यों बोल रहे हैं guys? Because it doesn't contain any element. इसमें कोई ना वेरिएबल्स होते हैं, ना मेथड्स होते हैं, ना कंस्ट्रक्टर्स होता है, ना ब्लॉक्स होते हैं, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है, तो उसे हम कहेंगे मार्कर इंटरफेस। अब चलो गाइस माइंड में तो आ रहा होगा कि यार
मार्कर इंटरफेस है, कोई एलिमेंट्स भी कंटेन नहीं करता है, ना तो वेरिएबल्स है ना तो मेथड्स हैं, तो फिर क्यों व्हाई यूज इन जावा प्रोग्रामिंग? मार्कर इंटरफेस क्यों यूज होता है, टैग्ड इंटरफेस करके यूज हो क्यों रहा है हमारे जावा में? अब देख बताओ गाइस क्या मीनिंग होगा उसका, व्हाई वो यूज होते हैं गाइस? यस, जैसे कि जावा में विच आर द मार्कर इंटरफेस, कौन कौन से मार्कर इंटरफेस है? क्लोनेबल है, देन serializable है, and remote interface. There is a three predefined marker interface present in our Java. जैसे कि ना देखो रिसेंटली अभी चल रहा है ना हैशटैग, हैशटैग पीपल, हैशटैग पर्सन, हैशटैग कोई भी हम बोलते हैं ना दिस इज माय हैशटैग। जैसे कि उसका क्या होता है कि हैशटैग मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स वेरी गुड, या तो कोई भी थिंग होगा रिगार्डिंग दैट आप लोग आप यूज करते हो ना हैशटैग करके अभी, तो उसमें क्या होता है ना उसका है ना एक खुद का एक मोर इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन होता है, खुद का एक खुद की एक स्पेसिफिकेशंस होती है। हैशटैग मींस दैट इज द वेरी गुड, दैट इज द वेरी पॉपुलर, दैट इज द वेरी 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 गुड एज कंपेयर टू द अदर, राइट? हैशटैग। तो जैसे कि जावा में क्या होता है इंटरनली जेवीएम प्रोवाइड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इस स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन, उसका है ना खुद का है ना एक क्या रहेगा, एक इट्स स्पेशल थिंग विद दैट दैट इंटरफेस। जैसे कि क्लोनेबल इंटरफेस है ना, क्लोनेबल इंटरफेस इज प्रेजेंट इन वेयर गाइस इन विच पैकेज, क्लोजेबल इंटरफेस इज प्रेजेंट इन java.lang पैकेज। किस पैकेज में मिलता है हमें? सॉरी, क्लोनेबल इंटरफेस lang पैकेज। अब क्लोन मींस उसका मीनिंग क्या है गाइस? एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है क्लोनेबल का कि एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना। वो क्या हुआ, किसका स्पेसिफिकेशन हुआ? क्लोनेबल इंटरफेस का। जैसे कि जेवीएम, जेवीएम इंटरनली अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टूड होता है कि क्लोनेबल का नेचर क्या है, क्लोनेबल का स्पेसिफिकेशन क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ क्लोनेबल। क्या टैग है उसका कि एग्जैक्ट कॉपी बनाना है, ऑब्जेक्ट की ना सेम कॉपी बनानी है, कोई क्लास की है ना हमें एग्जैक्ट कॉपी बनानी है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उस टाइम में ना वो क्लास किसे इंप्लीमेंट करना होना चाहिए गाइस? क्लोनेबल इंटरफेस को, नहीं तो क्लास नॉट सपोर्टेड करके एक्सेप्शन मिलेंगे हमें। उस टाइम में देखो क्या हो रहा है कि एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन है, एक स्पेसिफिक यूज है, या तो एक स्पेसिफिक उसकी आइडेंटिटी है। किसकी आइडेंटिटी है? मार्कर इंटरफेस की क्या होती है कि एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है। तो जावा में हमारे कितने मार्कर इंटरफेस होते हैं? बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड अवेलेबल है जावा में, पहले से जो अवेलेबल है serializable करके है। नाउ सिर्फ पहले तो हम मार्कर इंटरफेस कौन कौन से हैं और उसका डेफिनेशन आप देखेंगे, उसका यूज क्या होता है। इसके मार्कर इंटरफेस, अब देखो मार्कर इंटरफेस, इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है इसमें व्हाट इज मार्कर इंटरफेस। मार्कर इंटरफेस, अब कितने सारे मार्कर इंटरफेस है प्रीडिफाइंड जावा में, जैसे कि यहाँ पे हमें देखना है रिलायजेबल इंटरफेस है, दूसरा इंटरफेस है क्लोनेबल, क्लोनेबल, देन थर्ड इंटरफेस है हमारा रिमोट इंटरफेस। ओके, कितने सारे इंटरफेस है मार्कर इंटरफेस जावा में पहले से अवेलेबल है, जैसे कि सीरियलाइजेबल है, क्लोनेबल है एंड रिमोट इंटरफेस। अब सीरियलाइजेबल का क्या होता है मीनिंग, जिसकी आइडेंटिटी क्या है कि अगर कोई क्लास है ना सीरियलाइजेबल को इंटरफेस में ना इम्प्लीमेंट कर रही है। आप लोग गाइस आप लोग बोलोगे कि यार इम्प्लीमेंट क्लास में क्या होता है? इम्प्लीमेंट कर रही मीन्स implementing the incomplete method in a implementation class। तो चलो यार गाइस यहाँ पे हमने देखा है कि इंटरफेस मार्कर इंटरफेस मींस गाइस देयर इज नो एनी एलिमेंट, देयर इज नो एनी वेरिएबल्स एंड मेथड्स, वहाँ पे कोई मेथड्स भी नहीं होती हैं, एलिमेंट वेरिएबल्स भी नहीं होते हैं।
मार्कर इंटरफेस इन जावा इज एम्प्टी इंटरफेस। वो क्या होता है कि एम्प्टी इंटरफेस होता है विदाउट द एलिमेंट्स। यहाँ पे किसे इंप्लीमेंट करना है, कोई क्लास अगर सीरियलाइजेबल को इंप्लीमेंट कर रही है तो उसका मीनिंग क्या रहेगा, वो किसे इंप्लीमेंट करे वहां पे। तो जेवीएम इंटरनली क्या होता है, JVM compiler have additional information about an object. Each marker interface in Java added indicates that is represents something special to JVM और compiler. वो होता क्या है कि JVM को है ना एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी, किसका आइडेंटिटी करेगा वो, उस क्लास की, उस इंटरफेस की। जैसे कि यहाँ पे सीरियलाइजेबल है, सीरियलाइजेबल मीन्स ये किस में स्टोर होगा, हमारी जो भी फाइल्स होगी या तो अक्रॉस द नेटवर्क, उसमें क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट है ना स्टोर हो रहा है, सेव हो रहा है, राइट। सीरियली उसका मीनिंग क्या बनता है कि सीरियलाइजेबल, सीरियली वो वर्क कर रहा है। द नेक्स्ट इंटरफेस है हमारा क्लोनेबल। अभी क्लोनेबल है ना, कोई क्लास अगर क्लोनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो हम एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी, सेम कॉपी ना उस ऑब्जेक्ट की हम बना सके उस क्लास के ऑब्जेक्ट। अगर विदाउट इम्प्लीमेंटिंग अ क्लोनेबल इंटरफेस, अगर हम क्लोन करेंगे उसका एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करेंगे तो वहां पे एक्सेप्शन आएंगे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम। रन टाइम है ना, एक एरर आएगी, नॉट सपोर्ट, क्लास नॉट सपोर्टेड। ओके, यहाँ पे देखो गाइस क्या होता है कि इंटरनली जेवीएम क्या करता है कि एक स्पेसिफिक इंडिकेशन करता है, उसकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होगी क्लोनेबल की, मींस क्लोन करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्लोन करने का उसका मीनिंग रहेगा। वहां पे कोई मेथड तो नहीं है अवेलेबल, एम्प्टी इंटरफेस है, उसका काम है इंप्लीमेंट करना। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, हमने बना दिया है, तो अब ये किस टाइप का इंटरफेस बना हमारा, दिस इज अ मार्कर इंटरफेस। यहाँ पे कोई मेथड एंड वेरिएबल्स है क्या, कोई भी नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं गाइस हम, मार्कर इंटरफेस। एम्प्टी इंटरफेस, एम्प्टी इंटरफेस को क्या कहते हैं हम, मार्कर इंटरफेस। जैसे कि इंटरफेस डज नॉट कंटेन एनी मेथड और फील्ड, by implementing that interface if our object will get some ability, such type of interface are called marker interface। जैसे कि इसकी ना abilities होगी, कोई इंटरफेस है, अब मानो डी इंटरफेस है, इसका जो क्लास है ना इम्प्लीमेंट, डेमो क्लास किसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, डी को, तो इसकी एक स्पेशल टाइप की एबिलिटी रहेगी। जैसे कि नाउ सी किसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, अभी हमारा डेमो क्लास है ना, अगर क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्लोनेबल, तो इसकी क्या एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी क्या रहेगी गाइस, तो डेमो क्लास के ऑब्जेक्ट की क्रिएटिंग अ एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा सेम ऑब्जेक्ट। ओके, उसकी एक हर एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास के ऑब्जेक्ट की क्या होगी, स्पेसिफिक एक आइडेंटिटी बनेगी, उसकी एबिलिटी रहेगी, उसकी एक एबिलिटी रहेगी, स्पेशल टाइप ऑफ एबिलिटी। कोई भी क्लास है ना, इम्प्लीमेंटेशन क्लास अगर मार्कर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट की क्या रहेगी, एक एबिलिटी होती है, एक स्पेशल टाइप की एबिलिटी रहेगी। जैसे कि सीरियलाइजेबल, तो ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होगा, सेव्ड इन फाइल या तो अक्रॉस द नेटवर्क। तो क्लोन कर रहा है, क्लोन को, क्लोनेबल को अगर इंप्लीमेंट कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की एबिलिटी क्या बनेगा, स्पेशल टाइप ऑफ एबिलिटी, इट हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ एबिलिटी। तो उसकी क्या टाइप की एबिलिटी रहेगी, वो एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट में एग्जैक्टली डुप्लीकेट वो कॉपी बना सकता है खुद की। जैसे कि कोई भी क्लास मार्कर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है तो उसकी खुद की एक आइडेंटिटी बनेगी, उसकी खुद की एक एबिलिटी रहेंगी, डिफरेंट टाइप्स। जैसे कि हैशटैग हम बोलते हैं ना, हैशटैग, तो उसकी एक एबिलिटी होती है। हम कभी है ना जैसे कि कॉलेज में पढ़ते थे ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन, वीआईपी क्वेश्चन बोलते थे, तो वो क्यों मार्क करते थे हम, उसकी एक एबिलिटी है, ये मोस्टली आज क्वेश्चन है, मीन्स इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो जैसे जावा में क्या होता है कि कोई भी मार्कर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है क्लास, तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट की एक एबिलिटी हो जाती है अलग तरीके की। जैसे कि वो क्लोनेबल को इम्प्लीमेंट कर रही है तो क्लोन कर सकता है, उसका ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट कॉपी बना सकता है। सीरियलाइजेबल की होती है तो उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी एबिलिटी गाइज, तो सीरियली वो
फाइल में स्टोर हो सकता है या तो अक्रॉस नेटवर्क हो सकता है। तो उस क्लास का क्या हो सकता है, स्पेशल टाइप ऑफ बिहेवियर। अगर मार्कर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है क्लास, तो उस क्लास का बिहेवियर क्या रहेगा, एक स्पेशल टाइप का बिहेवियर रहेगा उस क्लास का। ओके, आपको समझ में आ रहा है क्या मार्कर इंटरफेस विदाउट द कंटेंट्स, एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन, एम्प्टी इंटरफेस, उसे एम्प्टी इंटरफेस को क्या कहते हैं गाइस, हम मार्कर इंटरफेस। क्लोनेबल किस पैकेज में होता है, जावा डॉट लैन, और सीरियलाइजेबल होता है कि जावा डॉट आईओ पैकेज। देन रिमोट इंटरफेस किस पैकेज में आता है, RIM करके एक पैकेज है हमारा प्री डिफाइंड, उस पैकेज में प्रेजेंट होता है रिमोट इंटरफेस। उसका भी रिमोट इंटरफेस नाम में ही है, डिक्शनरी मीनिंग जैसे होता है कि रिमोट का, सेम लाइक द एबिलिटी ऑफ दैट इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑब्जेक्ट इज टू रिमोट द बिहेवियर। तो क्या होता है कि गाइस मार्कर इंटरफेस में ना एम्प्टी इंटरफेस, वाई वो इज अ मार्कर इंटरफेस इन जावा। तो मार्कर इंटरफेस का एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होता है, स्पेसिफिक एबिलिटी होती है उसकी। जैसे कि अगर वो सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो सीरियलाइज उसका ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन द फाइल या तो अक्रॉस द नेटवर्क रहेगा सीरियली। ओके, देन क्लोनेबल का अगर कोई क्लास इंप्लीमेंट कर रही है, तो उस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या हुआ, उसकी एबिलिटी क्या हुई, तो एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी वो बना सकता है, बन सकती है उस क्लास की। ओके, जैसे रिमोट का हो रहा है, रिमोट का भी एबिलिटी क्या रहेगा कि वो रिमोटली वो बिहेवियर्स शो करवा सकता है। यस, ये होता है कि मार्कर इंटरफेस इन जावा। एम्प्टी इंटर उससे हम टैग इंटरफेस कह सकते हैं या तो एबिलिटी इंटरफेस कह सकते हैं। यस, थर्ड नेम इज एबिलिटी इंटरफेस। सो इंटरव्यूअर अगर पूछता है व्हाट इज मीन बाय टैग्ड इंटरफेस, तो मार्कर इंटरफेस का जो भी एम्प्टी इंटरफेस इज अ टैग्ड इंटरफेस इन जावा। मार्कर इंटरफेस मींस एम्प्टी इंटरफेस means marker interface, ability interface में empty interface। तो इसका यूज क्यों होता है कि जैसे कि जावा में हाउ मेनी मार्कर इंटरफेस, serializable, clonable एंड remote interface, this three interface is present in a java as a marker interface, as a empty interface। तो इसका है ना JVM में एक एबिलिटी है, इसका स्पेसिफिकेशन है, एक आइडेंटिटी है इंटरनली। ओके, उस स्पेसिफिकेशन के लाइक ये वर्क करते हैं। ओके, अगर है ना क्लोनेबल को इम्प्लीमेंट कर रही है कोई क्लास, अब चलो ठीक है, यहाँ पे ना हम प्रोग्राम में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेमो कर रहा था, तो यार यहाँ पे ना विच इंटरफेस इज इम्प्लीमेंटेड, क्लोनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहा है। तो क्लोनेबल को कर रहा है, तो यहाँ पे कोई फंक्शंस आएंगे क्या उसके गाइस, कोई भी फंक्शन, क्योंकि क्लोनेबल में कोई फंक्शन ही नहीं। बट ये जो डेमो क्लास है ना, हमारी डेमो क्लास, इसका एक खुद का एक स्पेसिफिकेशन हो जाएगा हमारे जावा में। जेडीके में क्या हो जाए, इसका जेवीएम में एक स्पेशल इन्फो। ये डेमो क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा ना, उस ऑब्जेक्ट की एबिलिटी क्या होगी गाइस। अब जो ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे देखो कि नाउ are creating one number of one object of that class mostly। अब देखो ये D1 की एबिलिटी क्या है अभी गाइस, ये ना एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बना सकता है बिकॉज ऑफ इट। किसे कर रहा है वो गाइस, किसे इंप्लीमेंट कर रहा है, क्लोनेबल इंटरफेस को। तो क्लोनेबल का मीनिंग क्या होता है कि क्लोन करना, एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बनाना। ओके, सीरियलाइजेबल है तो सीरियली वो टेक्स्ट में फाइल में वो स्टोर हो रहा है, या तो अक्रॉस द नेटवर्क वो सीरियली क्रिएट हो रहा है, स्टोर हो रहा है, राइट। यहाँ पे इसकी एक स्पेशल टाइप की एबिलिटी बन जाएंगी D1 ऑब्जेक्ट की। जो ऑब्जेक्ट बनाया ना डेमो क्लास का, इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी गाइस, यहाँ पे एक एबिलिटी बन जाएंगी स्पेशल टाइप की। जेवीएम में इसकी स्पेशल टाइप की एक एबिलिटी
है करके आइडेंटिटी करेगा। मार्कर इंटरफेस हम बना सकते हैं कि कस्टमाइज मार्कर इंटरफेस, यस कस्टमली हम मार्कर इंटरफेस बना सकते हैं। मार्कर नहीं होता एम्प्टी बॉडी, ओके उसमें कुछ भी कोई भी वेरिएबल्स नहीं होंगे, मेथड्स भी नहीं होंगे, कंस्ट्रक्टर भी नहीं रहेगा, ब्लॉक्स भी नहीं होंगे। उस इंटरफेस को हम क्या करेंगे, मार्कर इंटरफेस। अब वो जेवीएम में ना हम कस्टमाइजली उसे रियलाइज करवाएंगे, क्योंकि कस्टमाइज बनाया है, हमने यूजर डिफाइंड मार्कर इंटरफेस बनाएंगे। ओके अब होता है कि नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करते हैं कि इन केस ऑफ क्लास गाइस we are not we can't use a multiple inheritance in case of a class, क्योंकि one class can extend only one class at a time। अब इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ पे कितने सारे फंक्शंस हैं, मानो ठीक है यहाँ पे इंटरफेस गाइस, देखो यहाँ पे देखो कि वन क्लास डेमो इम्प्लीमेंट्स मोर देन वन इंटरफेस, तो ये हुआ मल्टीपल इनहेरिटेंस कंसेप्ट। कैसे, जैसे कि the child having a more than has a more than one parent, मोर देन वन क्लास को अगर वो एक्सटेंड कर रहा है तो वो हुआ विच टाइप ऑफ कंसेप्ट, मल्टीपल इनहेरिटेंस कंसेप्ट। मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पे एरर आ रही है, वो क्यों आ रही है, क्योंकि अनइम्प्लीमेंटेड फंक्शंस यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब एरर आएगी यहाँ पे ना, डेमो क्लास कितने सारे एलिमेंट कितने सारे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, मोर देन वन इंटरफेस को। एक क्लास मोर देन वन क्लास को इम्प्लीमेंट कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है क्या जावा में, नौ से अभी देखना। अब देखो क्लास है ना, क्लास भी है, कितने सारे क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, मोर देन क्लास। पॉसिबल है क्या जावा में गाइस, मोर देन वन क्लास को एक्सटेंड कर सकती है क्या, नहीं, ओनली वन No, क्लास sir. को एक्सटेंड कर सकती है, करके हम मल्टीपल अचीव नहीं कर सकते। अब देखो क्या अबाउट है ना, इंटरफेस। अब यहाँ पे क्लास बना देंगे, क्लास एस करके है, मोर देन वन इंटरफेस। यहाँ पे मानो कि i1 है, तो इम्प्लीमेंट कर सकती है मोर देन वन इंटरफेस। मोर देन वन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट Yes, कर sir. रही है, मींस i1 पे भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है, i2 की भी प्रॉपर्टीज एक्वायर कर रही है, तो ये वो हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। द चाइल्ड हैज अ मोर देन वन पेरेंट, या तो कोई क्लास है ना मोर देन वन क्लास को एक्सटेंड करती है, या तो मोर देन वन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो वो क्या हुआ, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस और देयर इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लास लेवल पे हम नहीं कर सकते थे, बट इंटर बाय यूजिंग इंटरफेस हम कर सकते हैं। यहाँ पे हो रहा है क्लोनेबल भी हो रहा है, इंटरफेस वन भी हो रहा है, कॉमन इंटरफेस इन और जावा। यहाँ पे एक डी नाम का एक इंटरफेस बना दिया है, डी को एक्सटेंड कर सकता है गाइस, डी। यहाँ पे कोई एरर आ रही है, कोई भी एरर नहीं, डी को भी इम्प्लीमेंट कर रहा है, मोर देन वन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, मीन्स मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज हो रहा है। तो जावा सपोर्ट्स ऑन विच बेसिस गाइस, इंटरफेस मल्टीपल को सपोर्ट कर सकता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस हम यूज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस कंसेप्ट। क्लास लेवल पे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, बट इंटरफेस लेवल बेसिस ऑफ इंटरफेस हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं हमारे जावा प्रोग्राम में। अब यहाँ पे कोई बंदा बोलेगा यार यहाँ पे आगे की प्रॉब्लम आएगी क्या, नहीं आएगी क्या, ओके क्योंकि हर एक इंटरफेस में अनइम्प्लीमेंट मेथड होती है, इनकम्प्लीट मेथड होती है। तो इनकम्प्लीट मेथड कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं हम, इम्प्लीमेंटेशन क्लास में। तो हम अगर एग्जीक्यूशन टाइम कंपाइलर कंफ्यूज होगा क्या,
किसकी मेथड कॉल करनी है? नहीं, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है तो किस क्लास पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम? डेमो। डेमो की मेथड एग्जीक्यूट होगी, इंटरफेस में थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पे, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन है तो वहाँ पे कोई एम्बिगुइटी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि किस इंटरफेस की मेथड कॉल करनी है। मानो कि इंटरफेस 1 इंटरफेस 2 में विद द सेम नेम से मेथड अवेलेबल है, बट वहाँ पे उसका कोई लॉजिक नहीं है ना, उसका लॉजिक कहाँ है? इम्प्लीमेंटेशन क्लास में, तो वहां से उसका एग्जीक्यूशन होगा, ना तो इंटरफेस से एग्जीक्यूट होगा। यस, वर आई क्लियर डाउट गाइस? To the interface we can Yes. assume multiple inheritance. हेलो सर। Yes, हाँ सर, रियल प्रोजेक्ट में ये मार्कर इंटरफेस यूज होता है क्या? होता है ना, जैसे कंपोनेंट कि एग्जैक्टली कॉपी अगर क्रिएट करनी है हमें ऑब्जेक्ट की, तो क्लोनेबल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें नहीं सर। विदाउट। हाँ हाँ, so एक बताता हूँ मैं, one line। जैसे कि हम हमारा एप्लीकेशन बनाएंगे ना खुद का, जैसे कि जावा ने क्या दिया हमें, किसने सारे इंटरफेसेस दिए मार्कर, सीरियलाइजेबल है, रिमोट है, उसके बाद क्या है, क्लोनेबल है। ये किसने दिया है? जावा ने प्री डिफाइंड। अगर हम खुद का अगर कोई मार्कर इंटरफेस बना रहे हैं तो उस एप्लीकेशन में क्या कर देंगे, फिर किस टाइप का लॉजिक इंप्लीमेंट करना होगा हमें, किस टाइप का स्पेसिफिकेशन देगा। जैसे कि मानो कि हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं और कोई हमें ना मार्कर इंटरफेस बनाना है, जैसे बैंक या स्टूडेंट रिलेटेड, एनआईटी या तो आईआईटी कॉलेजेस होते हैं, राइट? अब इनका मार्कर इंटरफेस किस तरीके का बनेगा? आईआईटी और एनआईटी में आपको अगर सीट लेनी है तो उसके लिए विच एग्जाम इज क्रैक बिफोर दैट, किसका रिजल्ट होना जरूरी है हमारे पास? गेट का। तो हमने गेट नाम का एक मार्कर इंटरफेस बना दिया, उसमें एम्प्टी बना दिया, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी मेथड्स हमने वहाँ पे यूज नहीं किए। और वहां पे देखो कि गेट फंक्शन इंप्लीमेंट हो रहा है, सॉरी, गेट इंटरफेस अगर इंप्लीमेंट करेगा कोई स्टूडेंट नया कोई, मीन्स उसका मीनिंग क्या हो रहा है कि इसने गेट एग्जाम दिए, इसने क्रैक कर दी, तो इसकी एबिलिटी क्या है, या तो इसे एनआईटी या तो आईआईटी कॉलेज में इसका एडमिशन हो सकता है। यस, किसने क्वेश्चन पूछा था अभी? यस सर, लक्ष्मी। लक्ष्मी। ओके लक्ष्मी, तो गुड क्वेश्चन। ये देखो कि रियल टाइम में ना कोई आप डेवलप कर रहे हैं हम एप्लीकेशन रिगार्डिंग टू द आप यूनिवर्सिटी या हाँ तो एनआईटी या तो आईआईटी बना रहे हैं, तो इसमें किस हाँ। यस। नाम से हम मार्कर इंटरफेस बना सकते हैं? गेट नाम से। गेट। जैसे कि गेट एग्जाम होती है ना क्वालिफाई करने के लिए, या तो कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, तो उसको अगर स्टूडेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो अगर क्रैक करके जा रहा है, उसका रिजल्ट है उसके पास, तो ही उसकी उसकी क्या एबिलिटी क्या हुई कि इसको एनआईटी या आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है, राइट? जैसे क्लोनेबल को अगर इम्प्लीमेंट कर दिए तो वो क्लोन कर सकता है, एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बन सकती है उसकी। ओके, जैसे कि देखो आप भी मार्कर इंटरफेस, राष्ट्रपति होते हैं हमारे, वो रिटायर हो जाए, मतलब उनका जो कालावधि होता है ना, उनका जो भी होता है टाइम पीरियड, वो अगर एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उनको जो भी सर्विसेज होती हैं गवर्नमेंट की, मिलती है या नहीं मिलती है गाइस? उसका एक आइडेंटिटी होती है या नहीं होती है? एबिलिटी है ना उनकी, जैसे कि उनको ट्रैवलिंग एयरलाइंस फ्री होती है, जैसे कि उनको पेंशन मिलती है, उसके बाद जो भी सारे गवर्नमेंट के रूल्स होंगे वो सारे उनको अप्लाई होते हैं। बट वो अभी उनके पास चार्ज है क्या? वो राष्ट्रपति है क्या? नाउ दे आर राष्ट्रपति ऑफ इंडिया। ओके, नहीं है ना वो। प्राइम मिनिस्टर जैसे कि पीएम है हमारे, उनका होने के बाद भी जो भी उनको सर्विसेज देते थे वो भी फ्यूचर में मिलती है। ओके, तो वो क्या हुआ, एक मार्कर इंटरफेस, हम एक एग्जांपल हमारा क्लैरिफाई करने के लिए हम दे सकते हैं। यस, तो ये उनकी एबिलिटी है। गवर्नमेंट सर्वेंट था पहले, जिनकी उनको पेंशन मिलते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट की क्या हुई एबिलिटी, क्या है कि वो रिटायर भी हो रहा है तो भी उसको पेमेंट मिलता था, आधा पेमेंट या तो कुछ जो भी परसेंटेज होगा, तो क्या हुई उसकी एबिलिटी है।
मार्कर इंटरफेस मीन्स एबिलिटी होती है, एक स्पेशल टाइप की उसकी एबिलिटी होती है। जैसे कि हमारे आर्मी के रिटायर होते हैं कोई, तो उनको एबिलिटी क्या होती है कि उनको पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिल सकता है, या तो उनको खेती बाड़ी देते हैं गवर्नमेंट कहीं पे भी अगर उनको लेनी है तो उनको कंसेशन मिलता है बहुत सारी चीजों में कि कुछ खरीदना है तो ये क्या हुआ, उसका एक स्पेशल टाइप की एबिलिटी बनी, एक मार्कर इंटरफेस हुआ। यस, अब मल्टीपल क्या देखने वाले थे गाइस हम, मल्टीपल इनहेरिटेंस ना। यहाँ पे इंटरफेस बन गया I1 करके बन गया। गेट नाम का फंक्शन होना चाहिए यहाँ पे, शो नाम का फंक्शन। ठीक है, उसके बाद है ना नया एक बना लेते हैं हम इंटरफेस। I2 यहाँ पे बन रहा है हमारा गेट नाम का, फिर से बन रहा है। और इसका है ना इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना देते हैं। क्लास implements I1 comma। तो गाइस अब कुछ बंदे बोल रहे हैं कि यार भाई I1 में भी ना सेम नाम का फंक्शन है गेट, I2 में भी गेट नाम का फंक्शन अवेलेबल है, यहाँ पे एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या? देयर इज नॉट रेज द एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, देयर इज how we can say that there is no any chance to raise the ambiguity problem। यहाँ पे एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आएगी नहीं, इसकी क्या गारंटी है? तो देखो कि यहाँ पे है ना हमने ओनली थॉट्स मींस यहाँ पे डिक्लेरेशन है गेट का, यहाँ पे भी डिक्लेरेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है क्या गाइस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है उनका, डी क्लास में हो रहा है। यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंट करना है गेट तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे हमारा मेन मेथड मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है, हमने कहाँ लॉजिक बना दिया, कहाँ इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, यहाँ पे ना हमारा D1 बन गया है। D1 डॉट किसे कॉल करना है, गेट। अब गेट मानो मुझे ना कहाँ से कॉल होगी, वो I1 से होगी या I2 से होगी, उसे कुछ लेना देना नहीं कहाँ से थे, उसका लॉजिक कहाँ पे प्रेजेंट है गाइस, डी क्लास में, इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। यहाँ से उसका लॉजिक इम्प्लीमेंट जो भी इम्प्लीमेंट होगा वो लॉजिक वहां से एग्जीक्यूट होगा, कहाँ से कॉल होगी वो गेट फंक्शन, डी क्लास से, इम्प्लीमेंटेशन क्लास से। अब चलो कि मानो कि यहाँ पे दूसरी भी क्लास बन गई इम्प्लीमेंटेशन, बट गेट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, कहाँ हुआ है, डी क्लास में हुआ है इम्प्लीमेंटेशन। वो इंटरफेस में चेक करेगा क्या कंपाइलर किस इंटरफेस की मेथड एग्जीक्यूट करवानी है, क्योंकि यार यहाँ पे तो कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी लॉजिक है क्या, एम्प्टी है। तो कहाँ से एग्जीक्यूट करेगा वो डी क्लास से, इम्प्लीमेंटेशन क्लास से। तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आएगी क्या गाइस, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम नहीं बनती है। तो करके जावा में ना थ्रू द इंटरफेस हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं। गेटिंग गॉट इट गाइस? यस सर। ओके, तो आपको है ना प्रैक्टिस करके देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है, डिफॉल्ट मेथड यूज होती है क्या इंटरफेस में, ये सो देखो। उसके बाद मार्कर इंटरफेस क्या होता है, ओके। एम्प्टी इंटरफेस को हम मार्कर इंटरफेस कहते हैं, मुझे और उसके क्या बोलते हैं गाइस, टैग इंटरफेस या तो एबिलिटी इंटरफेस, तीन नाम से जाना जाता है। अगर इंटरव्यूअर अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज मीन बाय व्हाट इज एबिलिटी इंटरफेस इन जावा, तो बोल देना कि एम्प्टी इंटरफेस होता है उसे हम एबिलिटी इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस व्हिच इज एम्प्टी इंटरफेस इज यूज्ड इन जावा। तो उसके बाद पूछ सकता है कि हाउ मेनी marker interface in a Java, so predefined there is a three marker interfaces, serializable, tunable, and remote interface. Okay, these are the marker interfaces.
तो अगर वो पूछता है कि व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस, व्हाई जावा प्रोवाइड द क्लोनेबल इंटरफेस एज अ मार्कर इंटरफेस, तो बोल देना कि उसकी उस क्लास की एबिलिटी क्या रहेगी, इफ एनी क्लास इम्प्लीमेंटिंग अ मार्कर इंटरफेस देयर इज अ सम स्पेसिफिक या तो सम देयर इज अ आइडेंटिटी ऑफ दैट क्लास ऑब्जेक्ट्स, उस क्लास का है ना स्पेशल टाइप का बिहेवियर रहेगा, राइट, having the specific ability of that class object in Java। अगर कोई मार्कर इंटरफेस की कोई क्लास इंप्लीमेंट कर रही है तो उसका स्पेसिफिक बिहेवियर रहेगा या तो उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी रहेगी एज कंपेयर टू द अदर क्लासेस। ये रहेगा उसका आंसर। उसके बाद क्या देखा हमने गाइस, ये सारे कंसेप्ट हुए हमारे आज।